Hello, I am Sharik Ansari from Goel Institute of Technology and Management from Electrical Department. Today we will see the application of superposition theorem in electrical circuit. Is also one of the fundamental theorems that is used for solving certain problems in electrical engineering. Now, as you are aware that those students who are having this course of basic electrical engineering come across many times this type of theorem, superposition theorem. At this stage, I just request all the viewers to go through my earlier video lecture on Kirchhoff law, because for this superposition theorem also we are solving any such type of problems. We need basic knowledge as the reduction of circuit when required using series, parallel, star delta combination. Also we need to distribute the currents in variation loops. To identify the loop first, distribute the currents to write the loop equation using Kirchhoff first and second law. So all that knowledge we must have before we consider the superposition theorem. So my sincere advice or suggestion to all the viewers that those who are still not are there of these facts, the series, parallel combination, star and delta connections for the identification of loops are mentioned to distribution of currents, that writing the equation and the solution of the equation. So please see the lecture well. Now start with the superposition theorem. Now move on statements of superposition theorem. The superposition theorem for electrical circuits state that for a linear system, the response voltage or current in any branch of a bilateral linear circuit having more than one independent source equals the algebraic sum of the responses caused by each independent source acting alone, where all other independent sources are replaced by their internal impedances. The contribution of each individual sources first must be turned off, set to 0 by replacing all other independent voltage sources with a short circuit, thereby eliminating difference of voltage, that is V is equal to 0. Internal impedance of ideal voltage source is 0, short circuit. Replacing all the other independent sources with an open circuit, thereby eliminating current, that is I is equal to 0. Internal impedance of ideal current source is infinite, open circuit. This procedure is followed for each source in turn, then circuit the resultant response are added to determine the true operation of the circuit. The resultant circuit operation is the superposition of the various voltage and current source. The superposition is very important in circuit analysis. According to superposition theorem, इस थ्योरम में मिनिमम 2 सोर्सेज होने कंपलसरी हैं. वो मे भी दोनों वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, दोनों करंट सोर्स हो सकते हैं, या वोल्टेज या करंट सोर्स दोनों हो सकते हैं. इसमें हम सेपरेट 1 बाई 1 सोर्स कंसिडर करके उसका इंडिविजुअल इफेक्ट निकालते हैं और फाइनली सारे इंडिविजुअल इफेक्ट्स को एक साथ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन हम ऐड कर देते हैं. अब हम कैसे 1 बाई 1 सोर्स कंसिडर करेंगे उस पर हम बात करेंगे. अगर किसी भी सर्किट में 2 वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं तो हम पहले एक वोल्टेज को कंसीडर करेंगे और दूसरे वोल्टेज को हम शॉर्ट करेंगे. ओके. अगर करंट सोर्स है तो उसको हमें ओपन करना है, मींस उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से हमें रिप्लेस करना है. तो आगे हम बात करेंगे कि हाउ टू डिड्यूस द वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स. ओके. सुपरपोजिशन का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें जो उसमें करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं उसको हमें डीएक्टिवेट करना पड़ेगा. तो हाउ टू डीएक्टिवेट द सोर्सेज. फर्स्ट इज वोल्टेज सोर्स. सपोज दैट हमने 12 वोल्ट की एक बैटरी ली हुई है. 12 अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है. अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो उसको हमें शॉर्ट सर्किट की तरह हम उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे. आइडियल वोल्टेज सोर्स को उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, मीन्स उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा. और इफ़ अगर कोई भी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है
तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस को हम एज इट इज़ रहने देंगे और वोल्टेज सोर्स को हम उसको शॉर्ट कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल में गिवन है 10 वोल्ट सोर्स और 5 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो हम 10 वोल्ट को शॉर्ट करेंगे, 5 को एज इट इज़ रहने देंगे। मीन्स अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का 0 है तो उसको सिंपली शॉर्ट कर देंगे, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ गिवन है तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। वोल्टेज इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड इन circuit. Now move on how to deactivate the current source. Let example 4 एम्पियर सोर्स। हमेशा अगर करंट सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल में कनेक्ट होता है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जी इनफाइनाइट है तो उस करंट सोर्स को हम आइडियल करंट सोर्स बोलेंगे। मीन्स उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो वो करंट सोर्स एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा। अगर आइडियल करंट सोर्स है तो उसको हम एग्जांपल में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय उसको ओपन सर्किट की तरह हम ओपन सर्किट की तरह हम कंसीडर करेंगे। ओके, अगर उसका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट रहेगा। जैसा कि एग्जांपल में गिवन है 4 एम्पियर करंट सोर्स है, उसका इंडक्टर 5 ओम है, तो 5 ओम ले लेंगे उसको और करंट सोर्स को ऑलवेज ओपन सर्किट करेंगे। करंट सोर्स इज ओपन सर्किटेड। अगर हमें सुपरपोजिशन सॉल्व करना है, थ्योरम सॉल्व करनी है, तो हमें करंट डिवीजन रूल भी आना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि करंट डिवीजन रूल, स्टार, डेल्टा एंड किरचॉफ करंट लॉ सारे इंपॉर्टेंट है। तो करंट डिवीजन रूल्स के लिए हमने 2 रेजिस्टेंस कंसिडर किए हुए हैं, R1 एंड R2, और सप्लाई वोल्टेज टोटल सप्लाई हमने V सप्लाई ली हुई है। ओके, when we given the supply voltage, then current flow in this circuit is divided into 2 parts, one is I1, another is I2. Now we calculate the current is I1 according to current division rule and also calculate the current I2 according to current division rule. अगर हमें I1 कंसीडर करना है तो I1 इक्वल टू क्या होगा, हम टोटल करंट ले लेंगे और जिसमें करंट निकालना है उसके जस्ट अपोजिट रेजिस्टेंस लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस लेंगे। मीन्स I1 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I। जस्ट अगर हमें I2 कैलकुलेट करना है, इसका हमें जस्ट रिवर्स करना है। मीन्स I2 इक्वल टू अगर हमें निकालना है तो जिसमें करंट निकालना है उसके जस्ट अपोजिट रेजिस्टेंस लेंगे, टोटल करंट लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल सम करेंगे। मीन्स I2 इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I लेंगे। इसे हम बोलते हैं करंट डिवीजन रूल। ओके, ये करंट डिवीजन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए। जहाँ पे हमने 3 रेजिस्टेंस लिए हुए हैं, R1, R2 एंड R3। अगर R1 में करंट निकालना है तो पहले हमें R2 और R3 को सिंप्लीफाई करना होगा। मीन्स इसको पैरेलली R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 करके एक रेजिस्टेंस में कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद हम करंट I1 निकाल सकते हैं। ओके, I1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले R2 और R3 को हम क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का निकाल लेंगे। R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3, हम सपोज इसको हमने RP माना हुआ है। अब R1 RP आ गया, सिंपली I1 हम निकाल सकते हैं, RP डिवाइडेड बाई R1 प्लस RP इंटू I। ये I1 हमारा करंट निकल आया। ओके, सपोज दैट एग्जाम्पल 4 एम्पियर करंट सोर्स है और 4 ओम रेजिस्टेंस है, 7 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है। I1 निकालना है, I2 निकालना है, सिंपली हम करंट डिवीजन रूल से निकाल सकते हैं। I1 की वैल्यू निकालनी होगी तो I1 जिसमें निकालना है उसका जस्ट अपोजिट है, दोनों का सम कर देंगे, 7 प्लस 4 इंटू 5, दैट इज I1 निकल आएगा। सिंपली I2 निकालना है तो टोटल करंट 5 एम्पियर इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 4, I2 निकल आएगा। ओके, तो करंट डिवीजन रूल हमें आना चाहिए, और कैसे हमें वोल्टेज सोर्स शॉर्ट करना है, कैसे हमें करंट सोर्स शॉर्ट करना है, उन दोनों को आना चाहिए, तभी हम सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। एंड नाउ मूव ऑन द हाउ टू सॉल्व द सुपरपोजिशन थ्योरम। टेक एग्जांपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। Now take an example of superposition theorem. Using superposition theorem, find the current through 2 ohm resistor. All values of resistor are in ohm. यहाँ पे एक हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें एक करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और सिंपली करंट सोर्स का कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, मीन्स आइडियल करंट सोर्स है। ओके, इस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करने के लिए 1 बाई 1 सोर्स लेना पड़ेगा। तो 1 बाई 1 सोर्स लेने के लिए हम पहले तो या तो 4 एम्पियर करंट सोर्स भी ले सकते हैं या पहले 6 वोल्ट सोर्स ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमने 6 वोल्ट को हमने रिप्लेस कर दिया, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस 6 वोल्ट एंड 1 ओम इसका सीरीज में लगा दिया इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर करंट सोर्स होता तो उस रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में यूज करते। तो फाइनली क्वेश्चन हमारा बन के आ गया 6 वोल्ट और 1 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में लगती है, ये फाइनली सर्किट बना हुआ है। अब हमें फाइंड द करंट फाइंड करना है 2 ओम में टोटल करंट कितनी फ्लो करेगी। तो अब हमें करना क्या है, 1 बाई 1 सोर्स लेके इंडिविजुअल इफेक्ट निकालने के बाद उन दोनों को हम सम कर देंगे तो टोटल इफेक्ट इन करंट निकल आएगा और 2 ओम में। ओके, तो इसके लिए हमें 1 बाई 1 सोर्स कंसीडर करना होगा। सबसे पहले हमने ले लिया
सपोज डेट 6 वोल्ट कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 एम्पियर करंट सोर्स को ओपन करना होगा, जो कि हम सर्किट से इसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो सर्किट हमारा सिंपली बचेगा 6 वोल्ट, 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम, बिकॉज 4 ओम में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, सिंपली हम उसमें केवीएल अप्लाई करके करंट की वैल्यू आईडीएस फाइंड कर सकते हैं, जो कि कितनी जो करंट है सिंपल 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम में जो भी करंट फ्लो करेगी वही आईडीएस होगी। 4 ओम में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ से हमने ओपन सर्किट कर दिया है। ओके, तो ये हमें सर्किट में दिखा हम शो हो रहा है कि 6 वोल्ट से जो भी करंट निकलेगा 1 ओम में जाएगा, 3 ओम में जाएगा, 2 ओम में जाएगा, वापस रिवर्स होकर फ्लो करता रहेगा, क्योंकि ये एक लूप क्रिएट हो चुका है। तो फर्स्ट ये फाइंड द करंट इन दिस लूप, अप्लाई केवीएल इन दिस लूप। तो कैसे निकाल सकते हैं इस करंट को? निकालने के लिए I = 6 डिवाइडेड बाई 1 + 3 + 2 करेंगे, तो सिंपली हमारी करंट निकल आएगी। ओके, अब हमें अगर 4 एम्पियर करंट सोर्स लेना है और वोल्टेज सोर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। सिंपली हमने शॉर्ट कर दिया और 4 एम्पियर करंट सोर्स ले लिया। 4 एम्पियर करंट सोर्स लिया, यहाँ पे सिंपली देख रहा है कि टोटल करंट हमें पता है 4 एम्पियर है, इधर सोर्स 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो हम करंट डिवाइडर रूल लगा देंगे, सिंपली करंट I फाइंड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो टोटल करंट फाइंड हो गया। तो I की वैल्यू हम निकाल सकते हैं R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2 इंटू टोटल करंट। I की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 + 2 इंटू 4। ओके, जैसा कि स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 + 2 इंटू